اعوذ باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہنواز بٹ اور فیصل منیر. اس وقت ناظرین میں موجود ہوں کوٹلی کے اس تاریخی جگہ آبشار چوک میں، جہاں پہ آزاد کشمیر کی 77 سالہ تاریخ میں پہلا ایک انوکھا احتجاج ہونے جا رہا ہے. اگر ہمارا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہاں پہ 11 بجے کا ٹائم تھا، مگر صبح ہی خواتین کی بڑی تعداد یہاں پہ پہنچ چکی ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سمجھ میں آج ایک بات ضرور آ رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے جہاں پہ مڈل کلاس لوگ، غریب لوگ یہ اپنے حقوق کی خاطر جاگے تھے، مگر آج اس معاشرے کی یہ خواتین بھی اپنے حق کے لیے یہاں پہ جمع ہونا شروع ہو گئی ہے. اور کسی بھی معاشرے میں اگر کوئی خاتون، کوئی بچے اگر کسی احتجاج میں شامل ہوتے ہیں تو یہ پھر سمجھ لے کہ اس حکومت کے لیے کوئی کار خیر نہیں ہوتی ہے. اس وقت پنڈال میں یہ خواتین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بزرگ خواتین بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی یہاں پہ آ رہے ہیں. اور جو ابھی ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ بہت ساری ریلیاں بھی یہاں پہ پہنچنے والی ہیں. یعنی کہ اگر دوسرے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا احتجاج شروع ہونے جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی یہاں پہ آہستہ آہستہ خواتین یہاں پہ جمع ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور اگر یہ اسی رفتار سے یہ خواتین اگر یہ آ گئیں تو پھر آج آزاد کشمیر کی تاریخ کا یہ ایک انوکھا اور ایک بڑا احتجاج ہوگا. اور یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لیڈیز پولیس کی بھی بڑی تعداد یہاں پہ آہستہ آہستہ یہاں پہ پہنچ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو احتجاج ہے جو کہ میڈم طاہرہ کی جو جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے نگرانی میں ہوگا، جس کی جو رہنمائیں وہ میڈم طاہرہ توقیر ہیں، عابدہ منصور ہیں، افرا شہزادی ہیں. ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، افرا شہزادی سے اور دوسری عابدہ سے کہ کیا معاملات ہوں گے، کس طرح ہوگا. مگر ایک بات ضرور ہم یہ کہیں گے کہ جس معاشرے کی خواتین اگر اس احتجاج کو کامیاب بنا لیں تو پھر جی عابدہ کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ کیا ماحول ہے اس وقت؟ کتنی تعداد آپ کے پاس؟ السلام علیکم. سب سے پہلے میں ساری خواتین کا شکریہ ادا کرنا چاہنی ہے جنہوں نے ایک کال پر لبیک کیا اصل احتجاجی تشریف ہے. سب سے پہلے گل یہ ہے کہ جڑا ظلم اساں پر ہونا پیا، جڑی مہنگائی اساں پر ہے، بجلی جتنے بھی بلات اساں پر غیر ضروری جڑے پائے گئے، اساں پوری کوشش کرنے پہ اپنے مردوں نے شانہ بشانہ کھڑے ہونے نے، اور اساں انہوں نے بھرپور انہوں نے نال کھلتے ہیں. اور سارے بڑی گل، سب سے بڑی گل جڑی حکومت کی آخنا چاہنے ہیں، کیا ضرورت محسوس ہوئی عورتوں کی، خواتین کی مرد احتجاج کرنے پہ سے؟ نہیں جتھے اساں نے محسوس کی تھی کہ اس معاشرے نہیں جتھے تک اساں نے مرد کھلتے اساں خواتین نہ بھی اساں کردار اپنے مرداں نال شانہ بشانہ ہونا چاہیے، انہوں نے جدوجہد کے نال اساں کی کھڑا ہونا چاہیے. اساں مرد نے نال ہمیشہ کھلتے ہیں. اور سارے تو بڑی گل کہ جڑی اساں اپنی کشمیر نہیں بجلی ہے، جڑی اساں بڑالی نہیں بجلی ہے، اساں منگلا نہیں بجلی ہے، وہ اساں کی نہیں دیتی جانی پی. کراچی، لاہور، اسلام آباد نے سڑکوں پر روشن ہونی پی، بل اساں جمع کرانے پہ، میرپور نے تک کوٹلی نے. اساں کیاں اس ظلم سوا اساں نہیں برداشت نہیں آدھی ہے جڑی ہوں اساں کی چاہیے نا کہ اساں اپنے مرد نے شانہ بشانہ کھڑے ہوئی اس ظلم کی ختم کرا. اور جب تک اس ظلم ختم نہیں ہونے لگا انشاءاللہ یہ عورتیں انہوں نے مرداں نے شانہ بشانہ ریسن. جی افرا کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ وکیل بھی ہیں پیشے سے، جی کیا ماحول ہوگا آج آپ کا؟ کتنی خواتین یہاں پہ جمع ہوگی؟ کیا احتجاج کامیاب ہوگا، ناکام ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا. تو جہاں تک بات ہے کامیاب احتجاج کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ آج اس دھرنے میں اتنی اکثریت میں عورتوں کا موجود ہونا، ہماری جیت یہیں سے شروع ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ جو حکمران طبقہ بیٹھا ہوا ہے اسمبلی کے اندر، میں اسے ایک بار پھر یہ باور کرواتی ہوں کہ ہماری چند خواتین کی آواز کو
जिन्हें तनहा समझकर तुमने हमेशा कुचलने की कोशिश की है, आज हम तुम्हें अमली तौर पर ये जवाब देंगे कि ये आवाज़ कितनी वजूद है। एक माकूल तादाद को आप यहाँ पर जमा करना शुरू हो गए हैं, यहाँ पर एक माकूल तादाद नज़र भी आ रही है। क्या तवक्को रख सकते हैं कि कितनी ख़वातीन हो जाएंगी? ये इवेंट एक कामयाब इवेंट होगा? इंशाल्लाह ये एक कामयाब इवेंट होने के साथ साथ आज मज़ामतकारी की एक नई तारीख लिखी जाएगी। हम पुरज़्म हैं और हमें रियासती ख़वातीन पे पूरा यकीन है कि वो हमारे यकीन का जो भरम है वो कायम रखेंगी। लोग जानना चाहते हैं कि मर्दों की जो यहाँ पर एक्टिविटी थी वो बड़ी कामयाब थी। ये आइडिया ख़वातीन का आप लोगों के जहन में कैसे आया और इसको आप कैसे कामयाब बनाएंगे? जी, हमने, अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूं या बाहसीयत तंजीम भी बात करूं, तो हमारा मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि औरत की आज़ादी से मुराद औरत के बाहसीयत इंसान उसके तमाम बुनियादी हकूक़ को जो है वो यकीनी बनाया जाना है। और ये जो तहरीक है ये किसी मखसूस तबके की जो तहरीक नहीं है। आटा जितना मर्द की ज़रूरत है उतनी औरत की ज़रूरत भी है, बिजली जितनी मर्द को चाहिए है उतनी औरत को भी चाहिए है। और जहाँ तक टैक्सेस की बात है, जो अशराफिया है उसकी मरात की बात है, तो अब ख़वातीन भी हम 9 से 4 ड्यूटी करके इनके टैक्सों का बोझ नहीं उठा सकते। जी बोझ इफ्रा बात कर रही थी, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं, अबशार चौक के अंदर हम मौजूद हैं। अगर हमारी ये नशरियात आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं अबशार चौक के अंदर, यहाँ पर मुख्तलिफ रहनुमा मौजूद है, तज्जिया लेंगे। सीनियर साफ़ी यहाँ पर अपना सईद भट्ट साहब मौजूद हैं, अमनाज साहब मौजूद हैं। इस वक्त हम उनसे भी बात कर लेते हैं। इस वक्त अबशार चौक के अंदर साफ़ियों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। सईद भट्ट साहब से बात कर लेते हैं। सईद भट्ट साहब, इस तहरीक का हिस्सा रहे हैं रेगुलर, आप, बड़ा तजर्बा है आपके पास, इस तरह की तहरीकों को आपने कवर भी किया और आप खुद भी हिस्सा रहे हैं। आइडिया बड़ा यूनिक है, ख़वातीन को बाहर ले आए हैं सड़कों पर, बच्चों को बाहर लेके आए हैं, कितने असरात होंगे सर इसकी? दरअसल मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में ये नहीं देखा कि आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन बाहर निकली हूँ। ये नाइल टोला जो हुकूमत में बैठा है, इन्होंने इनको मजबूर किया कि आज ये ख़वातीन बाहर निकली हैं। यहाँ कोटली में नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में बाहर निकली हैं। तो वैसे ये जो तहरीक चल रही है, आपने देखा होगा कि इस किस्म के एहतजाज, पहिया जाम, शटर डाउन यानी कि नामुमकिन था, लेकिन हुकूमत ने ऐसा कुछ काम किया कि अवाम के अंदर शऊर पैदा हुआ। और ये जो पेट्रोल महंगा, आटे पर सब्सिडी ख़त्म, उसके बाद ये बिजली के टैक्सेस, अवाम को शऊर दिया कि हम आप पर जुल्म कर रहे हैं, आप बाहर निकलें। तो पहिया जाम हो रहा है, आए दिन शटर डाउन हो रहा है। और ये जो यूनिक है कि ख़वातीन भी बाहर निकल आई हैं कि अब हम पर जुल्म बंद किया जाए। सरदार अमनाज, बेशुमार प्रोग्राम आप सब कवर करते हैं। ये जो आज की एक्टिविटी है, बिलखुसूस ख़वातीन सड़कों पर हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें जी, फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका और शहनवाज भट्ट साहब का। रात को हमने एक इंटरव्यू किया था ताहिरा तोकीर साहिबा और मिसेस शफकत गिलानी। उनका ये कहना था कि हमारे घरों में पुलिस के छापे हैं, हमारे घरों के वाहिद कफील ये लोग हैं, तो जब इनके ऊपर मुकदमात और FIR और इनके खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन होगा तो मेरे घर के चूल्हे कैसे जलेंगे। तो डेफिनेटली आज मजबूर होकर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद और बच्चों की इस वजह से निकली है कि एक तो महंगाई है, दूसरा जिन लोगों के ऊपर मुकदमात हुए हैं उनके घरों में फाकू की नौबत है, पुलिस उनको तंग करती है। एक बंदा एक घर का कमाने वाला है, जब उसमें मुकदमा होगा तो उसका घर का निज़ाम कैसे चलेगा। तो ये कोई शौक से ख़वातीन नहीं आती हैं, ये बायस मजबूरी आज बाहर निकली हैं और उन ऐवानों तक ये अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं जो गुज़श्ता 3 माह से ये तहरीक जारी है और उनके कानों तक जू नहीं रेंग रही। हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो आज़ाद कश्मीर की है, जिनका जो मोराल था आज से 1 माह कबल वो था धमकी अमेज, आप क्या समझते हैं कि आज हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हो चुकी है? ये जो कमेटियां बनी है ये क्या है? जी बिल्कुल शहनवाज भट्ट साहब, 200 यूनिट बिजली वाला मुद्दा तो आपने वज़ीर आज़म का सुना हुआ था। वज़ीर आज़म साहब ने पहले ये कहा था मुफ्त में मौत भी नहीं मिलती। तो इसका मतलब है कि हुकूमत बेबस हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त ये लोगों के मुतालबात माने। आज बहुत शुक्रिया, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बताते हैं। एक बड़ी रैली ख़वातीन की यहाँ पर मौजूद है, इसको हम कवर भी करेंगे। ये देखिए इस वक्त बड़ी रैली यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। माशाअल्लाह बड़ी रैली निकालने में आप कामयाब हुए, बड़ी माकूल तादाद है। कहाँ से आप लोग आए? माशाअल्लाह एक कामयाब इवेंट करने जा रहे हैं आप। जी मैं इधर हाउसिंग स्कीम में रहती हूँ। मेरा नाम ज़ारा इजाज़ है और मैं बेसिकली पहले से लिबरेशन फ्रंट के साथ अटैच हूँ।
تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ سب لوگوں کا حقوق ہے, ٹھیک ہے. ہم اپنا حق لینے نکلے ہیں, جو ہم لوگوں سے ہمارے پیسے ٹیکس کی صورت میں لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ, وہ ہم مانگ رہے ہیں. یہ وزیر اعظم جب سے آیا ہوا ہے لوگ اپنے بچوں کو زہر دینے پہ مجبور ہو گئے, لوگ اپنے بچوں کو لے کے خودکشیاں کر رہے ہیں. اس انسان کو شرم پھر بھی نہیں آتی. میں تو کہتی ہوں کہ اس کو ڈوب کے مرنا چاہیے. اس بغیرت انسان نے لوگوں کا جینا محال کیا ہوا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم لوگ روڈ میں لے کے بیٹھے ہوئے, ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے, اس کی بغیرتی کی وجہ سے ہے. کہاں سے آپ یہ ریلی کہاں سے آئی ہے؟ جی میں ہاؤسنگ اسکیم سے یہ ریلی لے کے آئی ہوں. ساری خواتین ہاؤسنگ اسکیم کی؟ جی یہ ساری جو خواتین ہیں میرے ساتھ ہاؤسنگ اسکیم سے میں لے کے آئی ہوں. الحمدللہ اور بھی جگہ سے لوگ ہیں لیکن وہ میرے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکے, وہ پہلے سے یہاں پہ پہنچے. میڈم سے جانتے ہیں, میڈم کیا کہیں گی؟ یہ عوام کا مسئلہ ہے اور سب خواتین کو, مردوں کو, سب کو باہر نکلنا ہے بس. لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھرپور ریلی ہے, ہاؤسنگ اسکیم سے یہ ریلی آئی ہے, بڑی تعداد ہے معقول, اور یہاں پر آہستہ آہستہ خواتین کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. ابھی پہلے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ 11 بجے کا ٹائم تھا لیکن ابھی 11 نہیں ہوئے, سینکڑوں تک خواتین کی جو تعداد ہے وہ پہنچ چکی ہے. اور یہ بچے بھی یہاں پر موجود ہیں. جی یہ بیٹا آپ کا؟ جی اور ماشاءاللہ اس کو بھی آپ احتجاج میں لائیے. جی ٹھیک ہے, کیا پیغام دیں گی آج کے احتجاج کے حوالے سے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آٹا اور چینی جو یہ سودا ان نے مہنگا کیا ہے سستا کرے, ہم یہی چاہتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ. اور بچے بھی اس ریلی میں موجود ہیں. اب یہ دیکھیے خاتون ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے, اور یہ بچے بھی اس احتجاج میں موجود ہیں. خواتین کی ایک مقبول تعداد یہاں پر پہنچ چکی ہے. ہمارے یہ براہ راست مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اس وقت یہ تازہ ترین صورتحال ہم آپ کو آبشار چوک سے دکھا رہے ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ نشریات پسند آئے تو پلیز اس کو شیئر کیجیے گا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آبشار چوک سے, براہ راست مناظر. یہاں پر میڈیا پرسن بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں, مختلف خواتین ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی میڈم آپ کہاں سے آئی ہیں؟ ہم ادھر سے شہر سے ہی آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تحریک جو آج خواتین کی ایکٹیویٹی ہے شہر کے اندر یہ کامیاب ہوگی؟ جی بالکل انشاءاللہ کامیاب ہوگی. سب کو نکلنا چاہیے جس طرح ہم آئے ہیں, تو انشاءاللہ بہتری کی امید ہے, تو اللہ بہتر کریں گے. بہت شکریہ. جی میڈم میں مزید آپ سے بات کروں گا. آپ کا بڑا عمل ہے, بڑی جان ماری ہے آپ نے اس پوری تحریک میں. آج کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ مجھے بس یہی کہنا ہے کہ ان لوگوں کے اب شرم سے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. ٹھیک ہے, یہ خواتین وہ خواتین ہیں جو اپنی شاپنگ کے لیے بازاروں میں نہیں جاتی ہیں, اپنے بچوں کے لیے کہیں نہیں جاتی, آج اپنی آواز اٹھانے کے لیے روڈوں میں نکلی ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ خواتین ہیں جو ان کے بھوکے بچے جب گھر میں ہوتے ہیں تو یہ زہر دینے پہ مجبور ہو گئی ہیں. میں اس حکومت کو کہتی ہوں کہ اب آپ کے لیے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. ٹھیک ہے, یہ جتنے بھی لوگ ہیں میں کہتی ہوں کہ ایک ساتھ اگر باہر نکلیں گے نا تو ان کو میں کہتی ہوں اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کے یہ سب کو مارنا چاہیے. براہ راست چل رہا ہے یہ پروگرام, پوری دنیا میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, گھروں میں بیٹھی خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں. گھروں میں بیٹھی جو خواتین ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں؟ میں ان کو کہتی ہوں باہر نکلیں, اپنا حق مانگیں. ہم کسی سے کسی کا حق نہیں مانگ رہے, ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں جو ہم لوگوں نے ان کو ٹیکس کی صورت میں دیا ہے. ٹھیک ہے, پانی ہمارا ہے اور یہ ہمیں ہی واپس جو ہے وہ ڈبل قیمت پہ دیا جا رہا ہے. بجلی ہماری ہے جو 2 یا 3 روپے ہم سے لے کے ہمیں یہ 30 روپے پر یونٹ کے حساب سے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک مزدور جو دہاڑی لگا کے 1000 روپے لے کے گھر آتا ہے اور اس کے بجلی کا بھی بل 50,000 ہے, تو وہ غریب عوام کیا کرے؟ پھر روڈوں پہ نہ آئے تو وہ کیا کرے؟ یہ جلسے جلوس نہ کرے تو کیا کرے وہ عوام؟ کس طرح موٹیویٹ کیا آپ نے ان بچیوں کو, ان خواتین کو, بڑی تعداد میں خواتین کو باہر نکالنے میں آپ لوگ کامیاب ہوئے؟ ڈور ٹو ڈور کمپین کی ہے اس کی, یا لیکچرز دیے, ورکشاپس کی, کیا کیا؟ نہیں, ہم نے ڈور ٹو ڈور کمپین کیا. 4-5 دن کا جو ٹائم تھا پچھلے جو مذاکرات ہوئے اس کے بعد, اور ہم نے برتی بارش میں بھی, رات کو بارش ہو رہی تھی اور ہم لوگ کمپین پہ تھے. اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چھوڑ کے ہم لوگ کمپین پہ تھے, اور بہت ایزیلی, کیونکہ یہ حکومت کے ستائی ہوئی عوام ہے جو ہمارے ایک دفعہ کہنے سے باہر آ گئی ہے. یہ جو بچیاں ہیں, والدین ہیں, یہ اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ نہیں سکتے. جی میڈم ماشاءاللہ معقول تعداد جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے, زبردست. سر اصل میں یہ ہماری جدوجہد بھی تھی, یہ ہم سب لوگوں کی, ہمارے مردوں کی, ہمارے بزرگوں کی, ہماری بچیوں کی اسپیشلی یہ جدوجہد تھی, کیونکہ یہ ایک دن ہونا ہی تھا. جب تک حکومت ہمارے معاہدوں پر ہی چلتے, ہمارے باتوں پر ہی چلتے, یہ دن تو آنا ہی ہے. اور جب تک یہ ظلم جاری رہے گا اس وقت تک سب عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی رہیں گی انشاءاللہ. یہاں پر ہمارے ساتھ سینئر صحافی شہنواز بٹ صاحب موجود ہیں. 30 سال ہو گئے سر آپ کو صحافت کے اندر, ایسی ایکٹیویٹی شہر کے اندر سر آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ یار آپ 30 سال کی بات کر رہے ہیں, یہ 77 سال کی تاریخ میں یہ پہلا احتجاج ہے. ٹھیک ہے.
جس میں یہ خواتین بچے آپ دیکھا وہ 6 ماہ کا معصوم بچہ بھی اس احتجاج میں آیا ہے. یہ وہ بچہ ہے اگر ہمارے کیمرہ مین اگر یہ آپ کو سارے دکھا سکے یہ 6 ماہ کا اگر یہ بچہ اگر یہ اس احتجاج میں آ سکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ کیوں نہیں بول رہے ہیں. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ آج جو نظارہ میں دیکھ رہا ہوں میں نے اس دن تو کہا تھا نا کہ زندہ دلانے کوٹلی جاگ گئے ہیں. کوٹلی کے عوام کے میٹر شارٹ ہو چکے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آج خواتین کے میٹر شارٹ ہو چکے ہیں. یہ جس طرح آپ کو انہوں نے کہا کہ بجلی کے بل ہم کہاں سے دیں, سودا مہنگا کہاں سے خریدیں, اشرفیہ کی یہ باتیں کر رہی ہیں. یہ وہ خواتین کی جن کے منہ میں زبان تک نہیں تھی مگر آج یہ اپنے حقوق کی باتیں کر رہی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوٹلی کی خواتین بھی جا گئی ہیں. اور جو میرے پاس اطلاعات ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ مظفر آباد میں جو ابھی میری بات ہوئی ہے کچھ دن پہلے مظفر آباد میں ایک بہت بڑا عوامی خواتین کا بچوں کا ریلا ہے. بہت بڑی وہاں پہ اسٹرائک ہو رہی ہے. ابھی بٹ سب سننے میں آیا کہ دمول سے ایک بہت بڑی ریلی آ رہی ہے خواتین کی. سے آ رہی ہے, رولی سے آ رہی ہے, سرساوا سے آ رہی ہے, بلیا محلہ سے آ رہی ہے, منڈی سے آ رہی ہے, صادقہ آباد سے آ رہی ہے, بہت ساری جگہوں سے یہ ریلیاں آ رہی ہیں. شہنواز بٹ صاحب تجزیہ کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ 70 سالوں میں ایسے مناظر ہم نے نہیں دیکھے. دیگر صحافی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی تجزیہ لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان صحافی انضمام چودھری. انضمام چودھری ماشاءاللہ ینگ ہے, کوریج کرتے ہیں, ایسا ماحول دیکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی بہت شکریہ. مجھے ویسے جو میری زندگی ہے 24 سالہ زندگی میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے 10 سے 12 سال میں نے زندگی کے تمام معاملات دیکھے ہیں, دنیا کے معاملات پر نظر ہے. لیکن آج آزاد کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے کہ آج ہماری مائیں اور 6 ماہ کے بچے ہاتھوں میں فیڈر لیے چوکو اور چرائیوں میں موجود ہے. ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ ہم کوئی کہہ سکے آج انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ اس کرپٹ نظام سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور تنگ ہیں. جی بہت شکریہ ناظرین. ہم آپ کو میڈم طاہرہ توقیر گیلانی سے بات کرواتے ہیں. براہ راست مناظر آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں میں چاہوں گا کہ میڈم طاہرہ توقیر کا پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے. یہاں پر میڈم طاہرہ توقیر موجود ہے جو اس سارے جو ریلی ہے اس کو احتجاجی جو ہوگا مظاہرہ اس کو لیڈ کر رہی ہے. میڈم ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد آپ اس کو جمع کرنے میں کامیاب ہوئے. کیا پیغام دیں گی میڈم؟ میں چاہوں گا آپ بات کریں. جی وہ اس وقت ساتھ ساتھ آنے والی کارکنان کو بھی ہینڈل کر رہی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. میڈم آپ کی گھروں تک جو ہے ان کی آواز جا رہی ہے جہاں پر بڑی تعداد میں خواتین موجود ہیں. میڈم طاہرہ توقیر یہاں پر جو اس کو لیڈ کر رہی ہیں وہ آنے والے کارکنان کو ویلکم کر رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے. کیا پیغام دیں گی؟ سب سے بڑا پیغام تو اس نالائق نااہل حکومت کے منہ پہ تھپڑ یہ ہے, یہ ہمارا ذیشان بٹی جس کے اوپر بوگس FIR کاٹ کے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اس کی بیمار ماں اس دھرنے اور اس ریلی میں شریک ہے. اس سے بڑا جذبہ اس قوم کے بچیوں کا, عورتوں کا اور ماؤں کا کیا ہو سکتا ہے. اور ہم یہ آج بھرپور قسم کا اپنا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. ابھی ارد گرد کے علاقوں سے بھی خواتین جو ہے اس دھرنے میں تشریف لا رہی ہیں. آپ دیکھیں گی کہ تاریخی عمل میں کوٹلی جو ہے اس وقت اپنے آپ کو صفحے اول پہ جو ہے وہ محسوس کرے گا. وقت سے پہلے سینکڑوں خواتین یہاں پر جمع ہیں. ابھی مقررہ وقت جو ہے ریلی کا وہ نہیں ہوا. کیا سمجھتی ہیں کہ یہ تعداد کہاں تک پہنچ جائے گی؟ جتنی کوشش ہے, جتنی ہماری کمپین ہے اس حساب سے تو ہم کوئی فگر نہیں دے سکتے, لیکن امید یہی ہے کہ ہمیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مایوس نہیں کریں گی, وہ ضرور باہر نکلیں گے. ماں جی سے پیغام لیتے. جی ماں جی کیا کہیں گی؟ میں کہوں گی کہ جو ان کا مطالبہ ہو وہ مطالبہ پورا کریں. جس کے لیے وہ قیدی کاٹ رہے ہیں نا اس کا مطالبہ پورا کریں. بہت شکریہ. جی ناظرین یہ تمام تر مناظر ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے. صبح سب سے پہلے جو ہے وہ یہ مناظر ہم نے آپ کو براہ راست دکھائے. اس وقت سینئر صحافی شہنواز بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن یہاں پر چونکہ خواتین کی باقاعدہ تقریر شروع ہو چکی ہیں, تقاریر جس میں وہ لڑکیوں کو موٹیویٹ کر رہی ہیں. تجزیہ لیتے ہیں بٹ صاحب سے, پھر اجازت لیتے ہیں. بٹ صاحب 2 جملے بتائیں پھر اجازت لیں. بات یہ ہے جی کہ میرا خیال ہے یہ ٹرانسمیشن آپ چلنے دیں کیونکہ ایک بہت بڑی ریلی بھی یہاں سے آ رہی ہے, اس کو بھی آپ کور کر لیں. آپ دیکھیں نا یہ خواتین کی بڑی تعداد ہے یہاں پہ آہستہ آ رہی ہے, اور اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوٹلی کی خواتین پر جا گئی ہیں نا. سیدھی سی بات ہے, یہ خواتین کو اپنے حقوق کی بات سمجھ آ گئی ہے. لیڈی پولیس بھی یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہے. اچھی بات ہے. جو جینٹس پولیس ہے وہ سائڈ پہ ہے اور ان کی جو لک آفٹر ہے, جو سیکیورٹی ہے وہ لیڈیز پولیس کے پاس. نا بھائی میرے کیا یہ جو لیڈیز پولیس ہے یا دوسرے مین پولیس کے ان کے بجلی کے بل نہیں آتے, ان کو مسائل نہیں ہے, لیکن یہ مجبور ہیں, یہ جاب ہے ان کی,
اس جاب کے آگے یہ مجبور ہیں, یہ اپنی ڈیوٹی کاری ہے, ان کو کرنی چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن یہ سب جو خوشائن بات ہے نا, جو کوٹلی کی پولیس ہے یہ بڑی فرینڈلی پولیس ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ڈرنے چکنے والی. شہنواز بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. یہ براہ راست مناظر آپ کے لیے پیش کرتے ہوئے صحافی حضرات بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. زاہد بیگ صاحب یہاں پر موجود ہیں, ان سے تجزیہ لے لیتے ہیں. زاہد بیگ صاحب ماشاءاللہ ویلکم کہیں گے. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس پر تجزیہ کریں. ایسی صورتحال جب اتنا جذبہ, لائیو ٹرانسمیشن ہے اور خواتین کا جذبہ دیکھ کے سر ہم حیران رہ گئے. جی بہت شکریہ فیصل منیر صاحب. آج جو ہے پورے آزاد کشمیر میں بجلی کے ناجائز ٹیکسز کے خلاف خواتین اور بچے سڑکوں پر ہیں, اور یہ حکومت آزاد کشمیر کے لیے جو ہے وہ سوچنے کا مقام ہے. جب تک عوام بنیادی حقوق سے محروم رہیں گے, وہ احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں. ہم حکومت آزاد کشمیر کو یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ جو مطالبات ہیں ان کو کوئی دوسرا رخ دینے کے بجائے عوام کے مطالبات کو سمجھا جائے, ان کے حقوق کو سمجھا جائے, ان کے مسائل کو سمجھا جائے, تو تب ہی جا کے ہم جو ہے وہ ترقی کی منزل حاصل کر سکتے ہیں. جی امید تھی کہ اتنی مقبول تعداد ہوگی. جی اس وقت بڑی تعداد میں یہاں خواتین جمع ہیں, اور آزاد کشمیر بعد سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ میرپور میں جو ہے وہ 4 بجے انہوں نے رکھا ہے, اور باقی اضلاع میں بھی خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ میدان میں آئے گی. اور اس وقت یہ بھی اطلاع ہے کہ مختلف جگہوں سے ریلیاں یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. جی سید بٹ صاحب سے جانوں گا. سید بٹ صاحب بڑے باخبر صاحب ہیں, تھوڑا سا آزاد کشمیر کی صورتحال سر بتائیے. جی بالکل. دراصل میں نے جیسے پہلے آپ سے بات کی کہ یہ جو نائل ٹولہ اوپر بیٹھا ہے, اس نے نہ صرف کوٹلی میں بلکہ پورے آزاد کشمیر میں خواتین کو باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے. تو ویسے پہلے شٹر ڈاؤن ہوتا تھا مرد حضرات کا, پہیہ جام ہوتا تھا مرد حضرات کا, لیکن آج آزاد کشمیر میں ایک یونیک کام ہوا ہے کہ خواتین تک باہر نکل آئی ہیں اس یعنی کہ مہنگائی کے خلاف. اور یہ جو ناجائز ٹیکسز لگائے گئے ہیں بجلی کے بلات پر, تو میں ویسے جاننا چاہتا ہوں مرزا زاہد بیگ صاحب سے بھی کہ ان کا کافی ایکسپیرینس ہے, تقریباً 35 سے 40 سال ہو گئے ان کو صحافت سے منسلک ہوئے. تو کبھی آپ نے دیکھا کہ اس تعداد میں خواتین باہر نکلی ہوں مہنگائی کے خلاف یا ناجائز ٹیکسز کے خلاف؟ جی بالکل. یہ پہلا واقعہ ہے آزاد کشمیر میں کہ لوگ اپنے مطالبات کے لیے میدان میں آئے, اور آج خواتین اور بچے بھی ہیں. دیکھیں آج یہ جو احتجاج ہے اس میں دیکھیں کہ لیڈی پولیس بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی, اور یہاں خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے. جی تو میں بات کر رہا تھا عوامی معاملات و مسائل کی. حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے ٹیکسز ختم کر دیے ہیں, لیکن ہم یہ حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو بجلی پاکستان سے جن ان راہ پہ لی جا رہی ہے, کیا وہ آزاد کشمیر کے شہریوں کو مہیا کی جا رہی ہے؟ یقیناً نہیں کی جا رہی. آپ رٹھوا ریام برج دیکھیں, اس پہ اربوں روپے جو ہے خرچ ہو چکے ہیں, اور آج 18-19 سال ہو گئے رٹھوا ریام برج وہیں پر موجود ہے. باقی کوٹلی شہر کے حوالے سے بات کریں تو کوٹلی میں پانی کی صورتحال دیکھیں, پانی جو ہے وہ میسر ہی نہیں ہے, اور جو ہے سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب عوام کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوں گے تو یقینی طور پر عوام سڑکوں پہ نکلیں گے. جی ہمارے ساتھ ماجد ارائیں صاحب موجود ہیں. ماجد ارائیں صاحب, آزاد کشمیر میں احتجاج کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہاں پہ میں حکمرانوں کے بے حسی کی نظر سے دیکھنا چاہوں گا کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ہماری خواتین بھی آج بے بس ہو کے سڑکوں پہ آ پہنچی ہیں. ہمارے نوجوان, ہمارے تعلیم یافتہ خوبصورت نوجوان یہاں سے اپنے مکان بیچ کے باہر جانے پہ منتقل ہیں. بے بسی کی انتہا ہے. وہ جو حکمران بیرونی دنیا کے دوروں پر چلے جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس آ کے بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. اسی عوام سے ووٹ لیتے ہیں, لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہاں پہ لوگ دیکھیں بے بسی کا عالم ہے. یہاں پہ لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں ملتا, رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا, تعلیم کی سہولیات نہیں, صحت کی سہولیات یہاں پہ نہیں ہے. ہماری خواتین یہاں پہ آج بے بسی کی منظر کشی کر رہی ہیں, یہاں پہ سڑکوں پہ آ پہنچی ہیں. یہ نوبت آخر کیوں آئی؟ کیوں ہماری خواتین کو باہر نکلنا پڑا؟ کیونکہ ناانصافی ہے, قانون کی حکمرانی نہیں ہے, عوام کو سہولیات نہیں, روزگار کے مسائل ہیں. دیکھیں ہمارے نوجوان, یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ
लाखों की तादाद में पढ़े लिखे नौजवान बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं, अपनी जायदादें बेच रहे हैं, लेकिन बेहिस हुक्मरान अपनी अय्याशियों में मगन है। तो इसी वाले से जुल्फकार डोगरा साहब से भी पूछते हैं कि यहाँ पे बेबस हो चुके हैं ख़वातीन भी आज रोडों पे, हमारे नौजवान पढ़े लिखे बाहर जा रहे हैं, बेबस हैं, लेकिन हुक्मरानों को टस से मस नहीं। आप क्या कहेंगे? बेसिकली हम जहाँ पर समाजी तौर पर पसमानदा हैं वहाँ पर हम ज़हनी तौर पर पसमानदा थे। ज़माना कदीम में या बईद में हम जब जाते हैं तो उस वक्त हमारी पसमानदगी ज़हनी पसमानदगी ज़्यादा थी, अब थोड़ी कम होना शुरू हुई है, यानी शऊर की रमक आना शुरू हुई है। शऊर की रमक आना जब शुरू हुई है लोगों को, तो जो तबका है, जो लोअर तबका है, उसने ये महसूस किया कि मेरे बच्चे माइग्रेशन पर मजबूर हैं, मेरे बच्चे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मेरे बच्चे तालीम के लिए फ़ीस उनकी जेब में नहीं है, मेरे बच्चे दियारे घर में ब्लॉक उठाते उठाते बूढ़े हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ की जो अशरफिया है, जो हमारे टैक्सों की तनख्वाह से हमारी खिदमत के लिए बढ़ती हुई है, वो गुलशरे उड़ा रही है, वो यशियाँ कर रही है, तो ऐसे में अवाम जागी है। बेसिकली ये तबकाती जंग है, बेसिकली अगर गौर करेंगे तो तबकाती जंग है। जो ऊपर का तबका था जो लूट मार कर रहा था कि उसके खिलाफ लोग उठे हैं, लेकिन जो खुशाइंद बात है आम आदमी के नुक्ता नज़र से और परेशान कुन बात है उस मफादाती क्लब के लिए, जो परेशान कुन बात है कि आप वो उनका राज ख़त्म होकर रहेगा, आप उनको मैरान कार में आना पड़ेगा, आप उनको मोटरसाइकिल पर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं अवाम हूँ, अगर मैं मोटरसाइकिल पर सर्व कर रहा हूँ तो वो डीसी जो है उसको भी आना पड़ेगा। गुज़िश्ता दिनों यहाँ पे साबिक आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर आए, उन्होंने भी यही कहा कि सब कुछ अच्छा है, पानी लोगों को मिल रहा है। आप क्या समझते हैं कि अवाम को या जो खुशामदी टोला है उनको सब अच्छा की रिपोर्ट देता है, या क्या वजह के हुक्मरान बाला क्यों समझते हैं कि सब अच्छा है? सर जी उनको पता है कुछ भी नहीं है, उन्होंने यही चूरन बेचना है कि सब अच्छा है। नीचे उन्होंने जो अपने अदारे जो सबॉर्डिनेट रखे होते हैं वो उन्होंने भी रिपोर्ट देनी है सब अच्छा है। उनको पता है कि सब अच्छा नहीं है, उन्होंने कहना है कि सब अच्छा है। जो आपको भी पता है, बहुत से लोगों को पता है, यहाँ पे एक तो FIR हुई हैं जो अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं, कुछ FIR ऐसी भी हैं जो कि जर्नलिस्टों पे भी हुई हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी सदाकत है कि क्या यहाँ के कोटली के 5 साथियों पे FIR हुई हैं कि नहीं हुई हैं? जहाँ तक ये बात आपको मैं राज की बताता हूँ, ये जो तबका होता है ना जो रूल करता है, लूट रहा होता है, बेसिकली चोरी, मैं चोरी करूँ तो चोरी है, बड़ी सीट पर बैठा हुआ चोरी करे, डाका मारे तो वो चोरी नहीं है। वो हमें रासान करने के लिए उनके सहूलतकार हैं जो शाम को आपको फ़ोन करते हैं, दोपहर को मुझे फ़ोन करते हैं, सुबह को इनको फ़ोन करते हैं। बेसिकली वो रासान कर रहे हैं, हमारे खिलाफ किस चीज़ का पर्चा वो काटेंगे? सवाल है ना कि हमारा काम है रिपोर्ट करना, हम अवाम है भाई, हम अवाम के नुमाइंदे हैं, हम कोई सरकार के नुमाइंदे नहीं है। ये हरासमेंट है जो कि नफ्सियाती, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल वार। वो साइकोलॉजिकल वार आपके साथ लड़ रहे हैं। हमसे ही एक उठेगा हमारा साफी दोस्त, उसको पता ही नहीं होगा कि मैं कासा लेसी कर रहा हूँ, मैं जंटी कर रहा हूँ, वो आपके कान में सरगोशी डालेगा। आपका इस एहतजाज से पहले और इस बार क्या हुकूमत घबरा नहीं गई है? सर जी हुकूमत जब पूरा जो वफादाती क्लब है, कोई अपोजिशन नहीं होती, ये ज़ाहिरी तौर पर लोगों को पागल बनाए, सब लूटने के लिए एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे होते हैं, वो खौफज़दा हैं, इसको कुचलने के लिए हर अरबा इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन वो अरबा को इस तक कामयाब नहीं हुआ है। शहनवाज भट्ट साहब, आप ये बताएं कि यहाँ पे ख़वातीन पुरअमन एहतजाज कर रही हैं, लेडीज पुलिस की बड़ी तादाद क्यों बुलाई गई? मेरे चांद, आपको पता है, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हो, आप देखो जब मर्दों ने एहतजाज किया तो कोई पुलिस थी? ये पुलिस क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ इन गोली बाली लड़कियों को, ख़वातीन को डराने के लिए, एक मेंटली प्रेशर लेने इनको लाने के लिए। ये देखें हम यहाँ पे खड़ी हैं, अगर किसी ने कुछ किया तो हम ये कर देंगे, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है। ये जितनी पुलिस है ये फ्रेंडली पुलिस है कि ये किसी की भूल है, अगर पर्चा करता है ना तो हम उसके पेट में जो उसने चोरी की वारदातें डाली हुई ना, अरबों रुपए यहाँ पर लुटे हुए, हम वो मंजर यहाँ पर लाएंगे। हमें पूरा सबूत मौजूद है। हमने वो वीडियो, जिस तरह इमरान खान कहता था ना कि मैंने वीडियो बनाकर छोड़ दी है, हमने भी वीडियो बनाकर छोड़ दी है। पुत्र, जिस दिन तुमने कोई ऐसे हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की तो हम बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, और उस वक्त पूरी दुनिया गूंजेगी, पूरी दुनिया के दिमागों में स्ट्राइक होगी कि ये कोटली है, कोटली में ये हो रहा है। खुदारा हमें मत पंगा लेना, हम शरीफ लोग हैं, हम कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं। जिस दिन ये पंगा, हमने जुर्म किया है तो पर्चे काटो, लेकिन जिस दिन ये जुर्म तुमने कर दिया
फिर हम बताएंगे कि सीटों पर बैठे हुए क्या जुर्म कर रहे हैं। ये जो अवाम के अंदर जो मायूसी पाई जाती है, हर किसने इनको हौसला देना है, किसने इनकी हौसला हमने देना है जी, अवाम ने, अवाम के जो लोग हैं साफियों ने देना है, हम उसको हौसला देंगे इंशाल्लाह ताला। हम चट्टान की तरह खड़े हैं। और फिर मैं उनको बताना चाहता हूँ, शारतन जो मैसेज भेजते हैं ना अपने सहूलतकारों के थ्रू कि तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाएगी, तुम्हारे करो भाई, हमें तो वी डोंट केयर अबाउट FIR, बट ये बताना चाहते हैं कि हमने कोई जुर्म किया होगा तो हमें आप गिरफ्तार करें। जुर्म तो किया है, लेकिन क्यों नहीं आपने जुर्म किया? मैं बताता हूँ आपके जुर्म। आपका सबसे बड़ा जुर्म ये है, आपने बैसिए जर्नलिस्ट इस सोई कौम को जगाया। ये जुर्म नहीं है? वो उनके नुक्ता नजर से जुर्म। आपका दूसरा जुर्म, आपने इस बोली बाली लोगों को इसके हकूक याद करवाए। ये क्या जुर्म नहीं है? ये जुर्म है, आपने किए भाई। आवाम जो बेबस और मायूस हो चुकी है, जो आवाम मायूस हो चुकी है, बैरून मुल्क जा रही है अपनी जायदादें बेच के, आप क्या समझते हैं किसका कसूर है, किसने इस कौम को संभाला देना है? देखिए जी, इस कौम को एक बात मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता चलूं जो मैं देख रहा हूं। आपने पिछले दिनों में एक चीज सुनी होगी, सोशल मीडिया पे एक चीज लॉन्च हुई कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक किंग्स पार्टी बनने जा रही है। मैं बताऊं वो पार्टी कौन सी बनने जा रही है? वो ये पार्टी बनेगी। याद रखना माजिद मेरी बात, मैं मर जाऊंगा, आप मर जाओगे, जिंदा रहोगे, एक पार्टी जरूर आप बनेगी। और वो पार्टी कौन सी होगी? ये पार्टी होगी। जिस पार्टी के में लीडर नहीं होंगे, ये कारकुनी लीडर बनेंगे। और ये पार्टी नई बन रही है। आप क्या समझते हैं कि इस एहतजाज करने वालों के पिछला एजेंडा कौन सा ढूंढा जा रहा है? इनका एजेंडा अवाम के मफाद में जो वो सुना ही नहीं जा रहा, तो पिछला कौन सा एजेंडा नजर आता है आपको? कौन सा पिछला एजेंडा है माय डियर? और यार ये अच्छा मुझे बताओ, ये कोई अमेरिका मांग रहे हैं, ये कुछ चांद मांग रहे हैं, ये क्या मांग रहे हैं? ये लोग बिजली पानी मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, कानून की हुक्मरानी मांग रहे हैं। कोई ठेके मांग रहे हैं, ये कोई पब्लिक सर्विस कमीशन मांग रहे हैं, ये क्या मांग रहे हैं? और ये आटा मांग रहे हैं भाई, ये बिजली मांग रहे हैं, ये अशरफिया की मराद को खत्म करने की बातें कर रहे हैं, ये तो ये मांग रहे हैं। अब देखें ना, ये चीजें मांगने के लिए क्या आप मुझे बताओ, आपको भी 30 साल हो गए, 25 साल, क्या इससे पहले कोटली में इस तरह की ख्वातीन बाहर निकली है? आप वो देखो, वो 70 साल की खातून है, यानी कि 70 साल की खातून भी यहाँ पे आई है और ये 6 माह का बच्चा भी यहाँ पे आया है। इसका क्या मतलब है? क्यों आए? क्या मांग रहे हैं? ये बात है माय डियर, ये अशरफिया बैग गई है, ये घबरा गई है, इसको समझ नहीं अब आ रहा है। वो कल तक जो हमारी हुकूमत कह रही थी ना, कौन से मुज़ाकरात, किससे मुज़ाकरात, देखे ना मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ भी बन गई हैं। और वो जो कल तक कह रहे थे कि फ्री बिजली दुनिया को कौन से हिस्से में आती है, किसी हिस्से में नहीं आती है। मैं बताता हूँ, हिंदुस्तान में दिल्ली में फ्री बिजली नहीं है, श्रीलंका में फ्री बिजली नहीं है, कतर में पूरी फ्री बिजली है कि नहीं है फ्री बिजली? बिल्कुल, ये पॉलिसी होती है कि जिनके सीने में कब्रिस्तानों पे डैम बनते हैं उनको टैक्स फ्री बिजली दी जाती है, जबकि हमारे पास मायदे भी मौजूद हैं जो मायदे किए गए हैं। तो टैक्स फ्री बिजली नहीं दे सकते तो आए रोज इजाफा क्यों करते हैं? और दूसरा, इस इजाफे से कट लगा के ये पैसा किधर जाता है? ये अवाम के खून पसीने की कमाई अशराफिया के अय्याशियों में क्यों लगती है? इस अवाम का तो ये कहना है कि इंसाफ का क्या अमल में लाया जाए, गरीब की कमाई को अय्याशियों पे ना लगाया जाए। ये मेरे ख्याल में जो इनका अगला पिछला एजेंडा अगर ये है तो ये कोई बुरा नहीं है, ये कौम मांगती रहेगी, ये कौम के हकूक़ हैं। इनको 2 वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं होता, तो कम अज कम अशराफिया को, कौम बाला को, पॉलिसी मेकरों मैं आपसे राब्ते में नाज़रीन, सर मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है खातून, ये वो खातून है जिसने पूरे आज़ाद कश्मीर की ख्वातीन को ये महसूस करवाया आप भी इस माशरे का हिस्सा है, आप भी एहतजाज कर सकती हैं, आप भी अपने राइट रखती हैं। जी मैडम तारा, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि इस ख्वातीन को इतनी बड़ी तादाद में आप लेके आई, क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इससे पहले हमने 2 जुलाई को कौम प्रेस जो ख़वातीन थी, जो कौमी आज़ादी की तहरीक में पेश पेश थी, उसमें भी कोटली की सरजमीन ने देखा था कि ख़वातीन कितनी बड़ी तादाद में बाहर निकली थी। और आज इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन का बाहर निकलना और इस सड़कों पे एहतजाज करना, इस रियासत जम्मू कश्मीर की के जो हुक्मरान है इस वक्त, उनका बहुत बड़ा फेलियर है। ये देखें, ये औरत आपसे रोटी मांग रही है, शर्म करो, घरों को चले जाओ अगर इनको रोटी। एक 70 साल की खातून से लेके 6 माह तक ये
बच्चा भी यहाँ पे आया है। जिन बच्चों के जिन लड़कों के को इन्होंने FIR काट के जेलों में डाला था, उनकी बूढ़ी माएँ आज इस रैली में मौजूद हैं। तो इसके से बड़ा इस कौम का और जज्बा क्या हो सकता है? क्या आगे अभी आपका अगला प्लान क्या है? अभी हम यहाँ से मूव करेंगे रैली की शक्ल में। फिर भी अभी तक जितने लोग सुन रहे हैं घरों में बैठे हुए हैं, जिंदा दिलाने कोटली आपने हमेशा तारीख रकम की है। मैं आपको पैगाम पहुँचती हूँ कि आपको ये पैगाम देती हूँ कि इस रैली का, इस तारीखी अमल का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अभी सरसावा से जुलूस, ये अभी सरसावा से एक जुलूस आ रहा है नाज़रीन, हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये आप देखें नाज़रीन, ये सरसावा से एक बड़ा जुलूस यहाँ पे कोर्ट में पहुँचा है। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये वो माहौल है, ये दमोल से है। ये जुलूस किधर से है? ये नाज़रीन कासिम कामरेड जो कि इस वक्त पाबंद सलासल है, उसकी मिसेस की क़यादत में ये जुलूस दमोल से यहाँ पे पहुँचा है। और आप देख सकते हैं इस वक्त कोटली का माहौल, इंतहाई सियासी टेम्परेचर गर्म हो चुका है। ये नाज़रीन दमोल से ये जुलूस है जो कि कासिम कामरेड जो कि और मंदियाड़ी से जो है ये काफिला आया है, दमोल से, पलेतर से और मंदियाड़ी से। कासिम साहब की मिसेस है? जी, कासिम साहब की मिसेस। आपके खामन मजाजी खुदा इस वक्त पाबंद सलासल है जी, हथकड़ियों में वो घिरा हुआ है, क्या कहना चाहेंगी इस वक्त हुकूमत से आप? मैं हुकूमत से ये कहना चाहती हूँ कि ये हम हथकड़ियों, गिरफ्तारियों और मुकदमात से डरने वाले नहीं है। ये देख लें मेरे साथ जो बच्चे और खवातीन निकल के आए, ये डरने वाले नहीं। अगर हम डरने वाले होते तो घरों में बैठ जाते, ऐसे निकल के रोडों पे नहीं आते। इतनी खवातीन और ये आपके बच्चे साथ, आपके बच्चे किधर है? क्या आपके बच्चों ने अपने वालिद से बात की है इन दिनों में? जी नहीं हुई है बात। जब थाने में थे, जिस दिन अरेस्ट हुए उसके तीसरे दिन उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद अभी तक मुलाकात नहीं हुई है और ना ही बात हुई है। इजाजत नहीं मिली मुलाकात के लिए कि आप नहीं गई हैं? नहीं, मैं बच्चे मेरे स्कूल जाते तो इस वजह से मैं उनको नहीं ले, मैं गई थी पर उन बच्चों को नहीं लेके गई। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये कासिम कामरेड की ये मिसेस है जो कि जिसका हस्बैंड पुलिस ने गिरफ्तार किया, मगर ये घर में नहीं बैठी, ये बल्कि अपने हक के लिए, ये अपने राइट के लिए ये यहाँ पे पहुँच चुकी है। ये नाज़रीन अब ये रैली की ये तैयारी शुरू है यहाँ पर। कैमरे ले आओ बीच में बोलो लोग क्रॉस कर। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में ख़वातीन इस वक्त यहाँ पर जमा हो चुकी हैं। जो बंदा है ना वो इसके बाहर करो, वो जितने भी हैंड कैमरे है खत्म से खलते हो इस तरह उन्होंने किया हुआ। जी नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको अबशार चौक से इस वक्त हम दिखा रहे हैं। तमाम तर मनाज़िर हमने आपको बराह रास्त दिखाए हैं। इस वक्त यहाँ पर मैडम ताहिरा तौकीर जो स्टेज पूरे हाथ बुलंद करके पूरी ताकत के साथ जवाब दे। जुल्म सितम, जुल्म सितम, नाअहल हुकूमत, चोर हुकूमत, नाअहल हुकूमत, चोर हुकूमत, आटा महंगा, बिजली महंगी, सेहत महंगी,
किन्नू दसिए हाय 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 तेज हो भाई तेज हो तेज हो भाई तेज हो खेतों और खलिहानों में चौकों और चौराहों में तेज हो भाई तेज हो नाअहल हुकूमत के खिलाफ नाअहल हुकूमत के खिलाफ जुल्म सितम जुल्म सितम जुल्म सितम हाय 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 नाराए कश्मीर नाराए कश्मीर बस थोड़ा सा इंतजार है, रैली आ रही है, फिर हम निकलते हैं यहाँ से आराम आराम से। बड़े वाया क्या होगा? बस ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बता रहे हैं अबशार चौक से। पूछते हैं वाया क्या होगा, रूट क्या रखा हुआ है आपने मैडम? रूट कौन सा है? इस वाले रोड से जाना है, बट अड्डा की तरफ से। जी बैंक रोड पे, बैंक रोड से जाएंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको अबशार चौक से इस वक्त हम दिखा रहे हैं। मैडम ताहिरा तौकीर इस वक्त नारे लगा रही थी, बूस्ट किया जा रहा था क्राउड को, और वाकई खवातीन का ये क्राउड बड़ा बूस्ट है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं अबशार चौक से। जी नाज़रीन, अबशार चौक से बराह रास्त मनाज़र आपके लिए पेश करते हुए अबशार चौक से बराह रास्त मनाज़र आपके लिए पेश करते हुए खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर खवातीन की तादाद दर्जनों के हिसाब से थी, लेकिन अब खवातीन की तादाद जो है वो सैकड़ों के हिसाब से हो चुकी है। ताज़ा तरीन मनाज़र आपको कोटली अबशार चौक से दिखा रहे हैं, जहाँ आज 10 अक्टूबर को खवातीन की तरफ से एक बड़ा एहतजाज रखा गया था, और इस वक्त यहाँ पर खवातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अभी नारे हो रहे हैं और ये मनाज़र हम आपको दिखाते हैं। तेज हो तेज हो भाई तेज हो महंगे आटे के खिलाफ महंगी बिजली के खिलाफ तेज हो भाई तेज हो तेज हो भाई तेज हो। कौन लेके आए? ताज़ा तरीन सूरत हाल अबशार चौक से आपके लिए पेश करते हुए आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है इस वक्त? क्या कोटली के लोगों के ये जो ख्वातीन इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आई, क्या कहेंगे आप? अबर साहब, मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली ये जो कुछ हो रहा है आज, वो इस साम्राज्य के खिलाफ जंग है। ये जो कुछ हो रहा है इस निज़ाम के खिलाफ जंग है। आप समझते हैं कि यहाँ पर अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून है। बुनियादी तौर पर ये महंगाई के खिलाफ तहरीक है, बुनियादी तौर पर ये महंगी बिजली के खिलाफ तहरीक है, लेकिन दर हकीकत इस पूरे साम्राज्य के खिलाफ जंग है। वो साम्राज्य जिसने गरीबों के हकूक़ को दबाया हुआ है, वो साम्राज्य जो गरीबों के हकूक़ को गस्ब किया हुआ है, वो साम्राज्य जिसने मुल्क के अंदर रियासत पाकिस्तान के। मुझे ये बात बताएं, ये आज़ाद कश्मीर की नोयत का पहला एहतजाज है जिसमें एक 70 साल खातून से लेके 6 माह की बच्ची तक इस एहतजाज में आई है, इसमें आप क्या कहेंगे? शहनाज भट्ट साहब, ये तहरीक जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर शुरू हुई और ये तहरीक पूरे कश्मीर में और पूरे पाकिस्तान में फैल रही है। ये रियासत पाकिस्तान के अंदर और रियासत कश्मीर के अंदर दरअसल उस साम्राज्य के खिलाफ ही जंग है। यहाँ इस सिस्टम के अंदर, इस निज़ाम के अंदर, इस मुल्क के अंदर 2 कानून हैं। गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है, वो साम्राज्य के लिए अलग कानून है। ये बुनियादी तौर पर लोगों के अंदर शऊर पैदा हुआ है। लोग जो जब महंगाई से तंग हुए, महंगी बिजली से तंग हुए, तो फिर वो बाहर मैदान में आ गए, अपना हक मांगना उनको वो शुरू हो गए। ये शऊर पैदा हुआ है और इसी को कहते हैं सियासी शऊर, समाजी शऊर। तो ये तहरीक जो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान तक फैलेगी। इस वक्त ताज़ा तरीन मनाज़र हम आपको अबशार चौक से दिखा रहे हैं। इससे पहले ये होता था कि मर्द हज़रात जो वो मैदान में होते थे, लेकिन आज ख़वातीन जो है वो मैदान के अंदर हैं। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको अबशार चौक से हम दिखा रहे हैं। सदर मंत्री हज़रत मलिक याकूब साहब यहाँ पर मौजूद। मलिक याकूब साहब से मलिक याकूब साहब माशाअल्लाह जीते या ख्वातीन जीती? मैं समझता हूँ कि कोटली के मर्द, नौजवान, ताजर, शहरी, ख्वातीन, बच्चे ये सब जीत रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अपने मतबाल की मजदूरी तक इतनी बेबस है कि वो एक अपने महकमा याद नहीं की सकने, अपने मिनिस्टर जेडे साढ़े नू वो महकमा याद नहीं अजे तक की सके। ते आटे पर सबसिडी किस तरह खत्म करवा सुना है, या जरा बिजली टैक्सेस हैं ये खत्म किस तरह करवा सुना है। आटे खत्म आ गई
बिल्कुल ये गल हक मंगने आई थी है तो अगर नहीं कुछ करी सकने तो उतरी क्यों नहीं जाने अपनी कुर्सियां परों अगर इन 53 उत्थे वजीर मशीर कुत्ते बिल्ले पाले ने तो इन्हें की है जी आवाम मरनी है रोडों पर जहर खाई तो अपने बच्चे औरतां मारनियां औरतां अपनी बच्चियां दी कीमतां किन्नी तो उन्हें फरोख्त करनी इन्हें की शर्म होना चाहिए इंप्रूवमेंट मिली है औरतां अपना हक किन्ने सा इंशाअल्लाह गलियां चौके चौराह हर जगह मौजूद हो सन इस विच सिर्फ मर्द नहीं ज़ाहिर आटा औरतां भी खानियां और जदों मर्द घर ना एक फर्द कमाना आ तो भुखियां औरतां की भी रहना पैना हाली इस विच मर्द नहीं रहना तो औरतां हर जगह अपना जड़ा वो हक अदा हक किन्ने से बाहर निकल सन वो बेशक कोई चौक वै कोई चौराह वै कोई भी जगह वै औरतां उत्थे पहले नंबर पुछसां कि ये खाली कोटली च खवातीन बाहर निकलियां या पूरे आजाद कश्मीर च एहतजाज निकाल सी जी नहीं असां जड़े मेम्बरान सी असां बाग ने नाल ये बच्चे नहीं बच्चे जी बेटा, आप किस लिए एहतजाज में आए? जी एहतजाज करेंगे? बच्चे भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आप ये मनाजर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर बच्चे ये ताज़ा तरीन मनाजर आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं इस वक्त आबशार चौक से कि बच्चे भी जो है वो इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। जी बेटा, आप एहतजाज में आए? ठीक है, आप कहाँ से आए बेटा? जमोल। अच्छा, आप बेटा कहाँ से आए? अच्छा, आप एहतजाज में आए? अच्छा ठीक है बेटा, आप कहाँ से आए? हम दमोल से। अच्छा, दमोल से। ये जो है वो कासिम कमरेड की बेटी है। बेटा कितने हैं आपके बाबा? वो जेल में। अच्छा, तो क्या पता। आप क्या मुतालबा करती हैं उनके लिए, अपने बाबा के लिए? वो रिहा हूँ कि वो रिहा हूँ। और कोई पैगाम? कासिम कमरेड की बेटी जो है मुसलमान करती और रैली का जो है वो आगाज हुआ जा रहा है। इस वक्त हम आपको बराह रास्त मनाजर दिखाते हैं। रैली का जो आगाज है वो हुआ जा रहा है। तमाम तर मनाजर हमने आपको बराह रास्त दिखाए। अब यहाँ पर रैली का आगाज हुआ जा रहा है। थोड़ी देर के बाद इन्होंने खवातीन ने यहाँ से निकलना है। अभी गाड़ियों को जो है वो एक वो हुआ जा रहा है। थोड़ी देर के बाद यहाँ से खवातीन ने निकलना है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ आबशार चौक से बैंक रोड की तरफ होते हुए भट्ट अड्डा तक जाएंगे और गालिबन जो है वो भट्ट अड्डा से हाफिज असलम रोड और फिर शहीद चौक से नीचे की तरफ ये रैली आएगी। जहाँ तक मेरी मालूमात है, या ये भी हो सकता है कि होशंगा का एक काफिला है उसका इंतज़ार हो रहा है सिरसावा से, बट सब सिरसावा का जो काफिला है उसका वेट हो रहा है। बाकी यहाँ पर जो है वो रैली मौजूद है, खवातीन मौजूद हैं और एक बड़ी तादाद जो है बट सब आज यहाँ पर ये जमा करने में कामयाब हो गए हैं। नाज़रीन, ये तमाम तर मनाजर हमने आपको बराह रास्त दिखाए, लाइव विद शहनवाज भट्ट, लाइव विद फैसल मुनीर। और हमारे ये प्रोग्राम अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि ख़वातीन की आवाज़ दूर दूर तक जाए। और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, साथ साथ कमेंट्स भी कीजिए ताकि आपकी राय हम तक पहुँच। मतलब मैडम तारा का जो गेस्ट था कि इतना टारगेट था, क्या उन्होंने ये ख़वातीन इतनी इकट्ठी करके अपना टारगेट अचीव कर लिया है? जी बट सब ये टारगेट पूरा हो चुका है। ये ख़वातीन जो यहाँ पर खड़ी हैं ये भी हम दिखा रहे हैं आपको। शॉप्स के अंदर ख़वातीन खड़ी हैं। ये देखिए छोटे बच्चे जो है वो, क्या नाम है इसका? ये इसका नाम है उमर मलक। ये क्यों आया है यहाँ पे? ये इस महंगाई के खिलाफ और बिजली के बिलों के खिलाफ यहाँ पर एहतजाज के लिए है। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं ये मासूम भी एहतजाज के लिए आया है। तो क्या अरबाब इख्तियार को अपनी आंखें नहीं खोलनी चाहिए? और ये रैली मेरे ख्याल से बट सब सिरसावा की तरफ से जो है वो यहाँ पर दाखिल हो चुकी है। बराह रास्त मनाजर आपको दिखा रहे हैं। वो रैली जिसका यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा था वो रैली यहाँ पर दाखिल हो चुकी है। ये ख़वातीन यहाँ पर आ चुकी हैं। अब यहाँ से जो है वो, जी मैडम इस वक्त ये देखिए आप रैली का आगाज़ हो चुका है। बराह रास्त मनाजर आपके लिए पेश करते हुए मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैडम से बात कर लेते हैं कि जो काफ़िले हैं जिनका इंतज़ार था वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। बराह रास्त मनाजर आपके लिए पेश करते हुए, जी नाज़रीन, ये तमाम तर मनाजर हम आपको बराह रास्त अपनी स्क्रीन के ऊपर पेश कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद है आ रही है तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा ताकि ये प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। बैनर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। रैली यहाँ से उसका आगाज़ होने लगा है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बच्चों को सबसे आगे किया जा रहा है और उससे पीछे रैली है और सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। एक कामयाब इवेंट जो है वो ख़वातीन का आज 10 अक्टूबर है और कोटली आबशार चौक से ये बराह रास्त मनाज़र आपके लिए पेश करते हैं कि 10 अक्टूबर 2023
बरोज मुंगल आज डिस्ट्रिक्ट कोटली की एक नई तारीख रकम होने जा रही है। जी बिल्कुल बट साहब, आप बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि वाकई एक तारीख, नई तारीख रकम बल्कि हो चुकी है। सैकड़ों ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, भरपूर एहतजाज है। थोड़ा सा यहाँ पर तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा ख़वातीन को, ताकि एक जो डिसिप्लिन है वो बरकरार रहे। अब देखना यह है कि रैली का आगाज़ हो चुका है, लेडीज़ पुलिस यहाँ पर मौजूद है जो इसकी सिक्योरिटी के लिए है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे बच्चे, और छोटे बच्चों के पीछे जो है वो ख़वातीन हैं। और अब ये तरतीब जो है वो रैली की दी जा चुकी है, और रैली का आगाज़ जो है वो बाकायदा हो चुका है। जी नाज़रीन, आप ये जो पैनल फ्लैक्स बच्चों ने पकड़े हुए हैं, पम्फलेट पकड़े हुए हैं, आप ये देख सकते हैं कि इनके ऊपर क्या लिखा हुआ है। ताज़ा तरीन मनाजर अपने नाजरीन के लिए पेश करते हुए बराह रास्त मनाजर, लाइव विद शाहनवाज भट्ट, लाइव विद फैसल मुनीर, ये तमाम तर मनाजर हमने आपको बराह रास्त दिखाए। एहतजाज है जिसमें बच्चे सरापा एहतजाज, ख्वातीन सरापा एहतजाज है। बेटा रैली कितनी लंबी है बट सब ये हम आपको बताएंगे। आप ये मनाजर देख सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, और बहुत लंबी रैली है ये, कई गज लंबी रैली है ये, और आज एक तारीख रकम हो चुकी है कोटली के अंदर। कोटली से बराह रास्त मनाजर। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वहाँ पे तुम जाओ और इन बच्चों को साथ साथ डील करना। जी नाज़रीन, आबशार चौक से ऊपर ये रैली इस वक्त भट अड्डा की तरफ रवाना दवा है। इस वक्त ये बराह रास्त मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम तज बराह रास्त मनाजर हमने आपको दिखाए। ख़वातीन की ये रैली, बड़ी तादाद में ख़वातीन सड़कों पर। बस खड़े हो जाओ। इस वक्त ये बराह रास्त मनाजर आपके लिए पेश करते हुए सुबह से यह है लाइव नशरियात हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव विद शाहनवाज भट्ट, लाइव विद फैसल मुनीर, तमाम तर मनाजर हमने आपको बराह रास्त दिखाए। आप लोग जो लोग सुबह से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त ये देखें कि हम भी जो है वो बाज़ औक़ात तो बोल बोल के थक जाते हैं, या बाज़ औक़ात हमारा मुंह जो है वो खुश्क हो जाता है। जी नाज़रीन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लेकिन आपकी हौसला अफजाई हमारे साथ रही, हम कोशिश करेंगे कि ये आखिर तक ये तमाम तर मनाजर आपको दिखाएं। जी नाज़रीन। जी जी सर।
शौकत कमर साहब हमारे साथ मौजूद है। शौकत कमर साहब, क्या मनाजर देखे सर, क्या तजिया देंगे? समझता हूँ कि ये कोटली की तारीख के सबसे बड़े ही एक इनकलाबी किस्म का एक मंजर है कि जो हाँ छोटे बच्चे, शीर ख्वार बच्चे और उसके बाद बिल्कुल कम सिन बच्चे, ख्वातीन और छोटी बच्चियों जो बड़ी तादाद में इस वक्त अपने हकूक़ के लिए बाहर निकली हैं। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई इनकलाबी इकदाम है और ये तारीख जो है वो अब ये रुकने वाली मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अगर हुक्मरान अपनी संजीदगी से इसको नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये तारीख और आगे बढ़ेगी, उनके लिए मुश्किलात का जो है वो मजीद बढ़ती जाएंगी। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। शौकत कमर साहब हमारे साथ मौजूद है, बराह रास्त मनाजर आपके लिए पेश करते हुए। इस वक्त हम कोशिश करेंगे कि दीगर साफ़ी हज़रात से भी तजिया लें। ये तमाम तर मनाजर आपको बराह रास्त आपके लिए पेश करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं डोगरा जुल्फ़िकार साहब, उनसे तजिया लेते हैं। डोगरा जुल्फ़िकार साहब, आप इधर मेरे पास आए, आप बेशक इधर ही रखे, रुख इधर ही रखे। तजिया यही है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अवाम ने एक लाइन खींच दी है, हालात ने एक लाइन खींच दी है। एक तरफ आटे में नमक के बराबर अशरफिया और मफादाती क्लब है और दूसरी तरफ हज़ारों की तादाद में अवाम है। ये इनकलाब है, इनकलाब का संगे मेल है, इनकलाब का संगे बुनियाद है और ये तहरीक हकूक़ के बगैर वापस नहीं जाएगी। बहुत शुक्रिया। आप इतने मुतमय्यन है कि ये तहरीक जिस तरह आपने दावा किया है ये तहरीक वापस नहीं जाएगी, इसका हमारे नाज़रीन को आप दलील दें। दलील ये है कि अवाम फटी हुई है। मैं अवाम हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अवाम हूँ। व्हाट्सअप मैं अवाम हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मेरे टैक्सों से तुम 2 करोड़ की गाड़ी में घूमो। मैं अवाम हूँ, मेरे टैक्सों से तुम 2 करोड़ की गाड़ी में घूमो और मेरा बच्चा मेरी बीवी के जेवर बेचकर दुबई में ब्लॉक उठाए, तो ये कैसे रुक सकती है? कैसे उठ सकती है कि एक रियासत में एक आदमी उस गरीब अवाम के टैक्सों से तनख्वाह लेकर याशियां कर रहा है और उसी रियासत का एक शहरी तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रहा है, तो इनकलाब कौन रोक सकता है? ये इनकलाब नहीं रुक सकता। बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार डोगरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो बात कर रहे थे। ठीक जी, इंजमाम चौधरी क्या कहेंगे आप? सर, आज मैं पहले भी एक दफ़ा आपसे फैसल भाई कह चुका हूँ, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है जो इस तहरीक को कामयाब कराने में अहम किरदार अदा करें। आज बुनियादी तौर पर जो हमारी ख़वातीन और बच्चे हैं उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो अपना हक लेकर रहेंगे। जी ठीक है, यहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत आपको दिखा रहे हैं। रैली जो है वो इस वक्त रवा दवा है, बट अड्डा की तरफ ताज़ा तरीन मनाज़र आपके लिए पेश करते हुए। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि बट अड्डा से ये रैली, आबशार चौक से ये रैली निकली है और अब ये रैली जो है वो बट अड्डा की तरफ जा रही है। तमाम तर मनाज़र हम आपको इस वक्त रास दिखा रहे हैं। जी इंजमाम चौधरी, क्या मनाजर देख रहे हैं अभी? सर, रैली इस वक्त बट चौक में खवातीन की एक बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। इंतजामिया की मैडम से बात कर लेते हैं। मैडम तारा तो फिर से। जी मैडम। जी, ये आज खवातीन ने भी अपना रेफरेंडम दे दिया है कि हम इस नाहल हुकूमत, करप्ट हुकूमत, चोर हुकूमत को अब अपनी कुर्सियां छोड़ के घरों को चले जाना चाहिए। अगर ये अवाम को सस्ती बिजली नहीं दे सकते, अगर ये अवाम को सस्ता इलाज नहीं दे सकते, आटा नहीं दे सकते, तो इन जिंदा लाशों को इन ईवानों में बैठने का कोई हक नहीं पहुंचता। कामयाब इवेंट करने में कामयाब हुए, तवक्को थी आपको? बिल्कुल तवक्को थी, इससे ज्यादा की तवक्को थी, लेकिन वही प्रोपेगेंडा जो हमेशा से लोग। बहुत लंबी लाइन है पीछे तक, कई गजों के हिसाब से कामयाब इवेंट है मैडम। बिल्कुल कामयाब
ایونٹ ہے, باوجود ہماری کوششوں سے اس میں بہت ساری خواتین شرکت نہیں کر سکی, لیکن جو آ سکی ہیں وہ کامیاب انہوں نے اس ایونٹ کو بنا دیا ہے. براہ راست مناظر آپ کے لیے پیش کرتے ہوئے براہ راست مناظر آپ کے لیے پیش کرتے ہوئے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں تازہ ترین مناظر. یہ ریلی, یہ جو ریلی ہے, یہ پورے آزاد کشمیر کے سیاسی سسٹم پہ اتنا بڑا بھرپور تماچا ہے. اگر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ اگر اس تماچے کو محسوس کریں تو آج یہ اسمبلیوں سے استعفے دے کے واپس اپنے گھروں میں ان لوگوں کے ساتھ یہ کھڑے ہوں. میں صرف اتنی بات کہوں گا. بہت شکریہ جی بٹ صاحب. آپ جی زید بیگ صاحب. جی بہت شکریہ. اس وقت دیکھیں کہ یہ احتجاجی ریلی جو آبشار چوک سے شروع ہوئی, بڑی تعداد میں خواتین اس ریلی کے ساتھ موجود ہیں اور یقینی طور پہ یہ حکومتی ایوانوں کو ہلانے کے لیے یہ جو ریلی ہے یہ کافی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوامی حقوق جب تک پورے نہیں کرے گی حکومت, اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ عوام کو لالی پاپ دے اور زبانی وعدوں پہ وہ جو ہے وہ انحصار کرنے کے بجائے لوگوں کو عملی طور پر ریلیف دے گی, تو تب ہی یہاں پہ معاملات حل ہو سکیں گے. شکریہ زید بیگ صاحب. جی آزاد کشمیر بار سے ملنے والی اطلاع کے مطابق اس وقت آزاد کشمیر بار میں جو ہے وہ خواتین اور بچوں کا احتجاج جاری ہے اور حکومتی ایوانوں میں لرزہ بھی طاری ہے. آج آزاد کشمیر کے باقی ضلعوں راولا کوٹ میں کیا ہو رہا ہے, مظفر آباد, ہجیرہ, پلندری, اتراڑ کھان, میرپور, بھیمبر, ان علاقوں میں کیا ہو رہا ہے؟ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں بھرپور طریقے سے احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. میرپور کی جو احتجاجی ریلی ہے وہ 4 بجے شروع ہوگی. اس وقت حکومتی سب سے بڑی ریلی مظفر آباد میں ہوگی, وہاں کی کیا اطلاعات ہیں؟ مظفر آباد میں ابھی ریلی جو ہے وہ تھوڑی دیر میں اس کی اطلاعات آپ تک پہنچیں گی تو ہم اپنے ناظرین کو اس کی تفصیلات بتائیں گے. اس وقت ہم پورے آزاد کشمیر کے جو صحافی حضرات ہیں ان سے رابطے میں جو اطلاعات آتی جائیں گی ہم انشاءاللہ اپنے ناظرین کو بھرپور طریقے سے اپڈیٹ کریں گے. جی ناظرین, یہ تمام تازہ ترین صورتحال آپ کو دکھا رہے تھے. زاہد بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور زاہد بیگ صاحب نے آپ کو تفصیلیں بتائی پورے آزاد کشمیر کی, کہاں کہاں رابطہ ہوا, کس کس ضلع کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا اور کیا مناظر ہیں باقی ضلع کے. جی میں نے آپ کو بتایا کہ میرپور میں ریلی جو ہے وہ 4 بجے شروع ہوگی, مظفر آباد میں ریلی تھوڑی دیر میں وہ شروع ہونے والی ہے اور راولا کوٹ اور باغ میں بھی اسی طرح احتجاجی ریلیاں جاری ہیں. زاہد بیگ صاحب تجزیہ کر رہے تھے, سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہے. تمام تر چینلز کے اوپر براہ راست مناظر آپ کے لیے پیش کرتے ہوئے جی ناظرین کے مناظر ہم آپ کے لیے براہ راست پیش کرتے ہوئے اس وقت حافظ اسلم روڈ سے ہم گزر رہے ہیں اور حافظ اسلم روڈ سے یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے مناظر, حافظ اسلم روڈ سے ہم گزر رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ماجد صاحب سے تجزیہ کر رہے تھے. جی ماجد صاحب, کیا مناظر ہیں سر, بھرپور ایونٹ ہے سر؟ کوٹلی کی طرف بھی ہر طرف یہیں فضا میں آوازیں گونج رہی ہیں, ظلم و ستم آئے, آٹا مہنگا, بجلی مہنگی, ٹیکسز کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں. ہر طرف یہ بچوں کی, بڑوں کی, خواتین کی ایک ہی صدا ہے کہ ظلم و ناانصافی کا خاتمہ کیا جائے, بجلی بلات میں اضافے کے ٹیکسز میں اضافے کو ختم کیا جائے. یہاں پہ غریب لوگوں کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں, جبکہ عیاشیاں حکمرانوں کی بند نہیں کی جا رہی. یہاں پہ خواتین کا بھی ایک ہی مطالبہ ہے کہ ظلم و ستم, ناانصافی, مہنگائی کا خاتمہ کیا جائے اور اشرافیہ کی عیاشیوں کو ختم کیا جائے. ہم نہیں مانتے, ہم نہیں جانتے, تیز ہو بھائی تیز ہو, اونچی آواز میں جواب دے, تیز ہو بھائی تیز ہو, مہنگی بجلی کے خلاف
जी नाज़रीन, इस वक्त शहीद चौक की तरफ ये रैली जाती हुई, इस वक्त ये मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं। अब आफा अस्लम रोड से गुजरती हुई शहीद चौक की तरफ रैली जाती है। अपने हक अपना राइट हासिल करने तक ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। शहीद चौक के मनाजर, इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद चौक के अंदर, और शहीद चौक के अंदर खवातीन की ये रैली पहुंच चुकी है। शहीद चौक से जो मनाजर बच्चों से भरा हुआ है। ये पुराना न्यूज़ ख्वातीन का तमाम नौजवान इकट्ठे हो जाए, इस मीनार को छोड़ दें। जी नाज़रीन, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत आपको बताएं कि शहीद चौक में ये रैली दाखिल हो चुकी है, और शहीद चौक में ये तकरीर होंगी। बहुत बड़ी तादाद है, ये आप मुनासिब देख सकते हैं कि ये रैली शहीद चौक में दाखिल हो चुकी है, और एक तारीख रकम हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ये खवातीन थी, और यहाँ पर तकरीर होंगी। हम कोशिश करेंगे कि वो तकरीर भी आपको बराह रास्त दिखाएं। नाज़रीन, हम कोशिश भी करेंगे यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की। नाज़रीन, सर मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिसकी सारी जिंदगी एहतजाज करते गुजरी। क्या कहना चाहेंगे ज़हीर चौधरी, अवाम का ये इतना बड़ा ख्वातीन बच्चे, क्या कहेंगे, क्या माहौल है सर टोटली का? मैं सबसे पहले शहनाज बाट साहब आपका मशकूर हूँ कि आपने आज इस जलसे को कवरेज दी। आज कोटली की माएँ बहनें बेटियों ने बाहर निकल के अपना एहतजाज जो रिकॉर्ड करवाया है। हुकूमत वक्त को होश के नखल लेने चाहिए। जब चूल्हे और चौकी की चौकीदार सड़कों पे आ जाए तो उसका मतलब है कि घर के हालात बहुत खराब हैं, और इस महंगाई के दौर में हमारी माओ बहनों बेटियों ने बाहर निकल के अपने भाइयों के साथ, अपने बेटों के साथ, अपने घर के वारसों के साथ ये यकजहती की है कि अब कानून के चलाना उनके बस की बात नहीं रही। और ये किसी भी हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि उस स्टेट की औरतें सड़कों पे आ जाए उनके खिलाफ। ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था, ये जो रैली है आज की, ये इस सारे आज़ाद कश्मीर के एक सियासी सिस्टम पे इतना बड़ा भरपूर तमाचा है कि जिस पे आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले मैं कोटली और कितनवा से तशरीफ लाने वाली मोअज़्ज़ज़ माओ बहनों और बेटियों को इस इंकलाबी सफर में खुशामदीद कहती हूँ, और इनके जज्बे और जुर्रत को सलाम पेश करती हूँ। आज आपने अपने घरों से बाहर निकलकर ये साबित कर दिया है कि आप कश्मीर की बागैरत माँ जिंदाबाद, सलाम आपकी जुर्रत को। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से करना चाहती हूँ, तो मैं तिलावत के लिए दावत देती हूँ हाजरा को। बच्चों जिसने भी करनी है। आप खुद कर लेना, खुद ही कर लेना। अच्छा, अगर आप लोग
खड़े होने में कंफर्टेबल नहीं है तो इसी जगह पे आप बैठ भी सकती हैं। अगर आप बैठना चाहें तो ये रोड है, आप इस पे बैठ भी सकती हैं छाँव छाँव वाली साइड में। बैठना नहीं है, बस मैं मैनकायरा को दावत देती हूँ कि वो अपने हालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदा दिलाने कोटली की बेटियों को सुरख सलाम। हाथ बुलंद करके अपने लिए क्लैपिंग करें। आज मेरी कोटली की बेटियों ने ये साबित किया है कि हम मोहब्बतकारों की धरती से ताल्लुक रखती है। आज मेरी कोटली की माओ ने ये साबित किया है कि कोटली के अंदर उन्होंने शेर बच्चों को जन्म दिया है और वो उनके साथ कोटली की बहनों ने साबित किया है कि बागैरत भाइयों ऐसी ही होती हैं जो इस चौक में मौजूद है। मैं इर्द गिर्द खड़े लोगों से जो कि इस इंतजामिया का हिस्सा नहीं है एक्शन कमेटी की, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अगर इस अजीम कारवां का हिस्सा आप अपनी माओ बहनों बेटियों को नहीं बना सकते तो आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि साइडों पे खड़े होकर आप हमें देखें। इस नाअहल, नालायक और इन चोरों की हुकूमत के मुंह में बहुत बड़ा तमाचा साबित किया है रियासत जम्मू कश्मीर की बेटियों ने। इससे पहले ये तमाम बेटियां कौमी आजादी की तहरीक में अपने मर्दों के शाना बशाना थी। आज देखे सस्ती रोटी के लिए, सस्ते आटे के लिए, सस्ती बिजली के लिए ये जो है वो रोडों पे मौजूद है। और न सिर्फ ये कोटली में मौजूद है, ये रावलाकोट में मौजूद है, ये मीरपुर में मौजूद है, कश्मीर की सड़कों पर फैली हुई है। मैं सलाम पेश करती हूँ अपनी तमाम माओं बहनों और बेटियों को। हम आज के दिन हुकूमत वक्त से इन नाअहलों से, इन चोरों के सामने जो मुतालबात रखना चाहते हैं वो ये है कि फ्री बिजली हमारा हक है। आप खड़े करके बताएं कितना फ्री बिजली चाहिए। फ्री बिजली हमारा हक है, हमारे हिस्से में पैदा होती है भाइयों, हमारे हिस्से में हमारे दरियाओं में से बनती है मेरी बहनों। फ्री बिजली आपके बच्चों का हक है और हम आपको दिला के रहेंगे। और हम जो घरों में घटिया और खराब किस्म का आटा खाते हैं, हमें उस आटे से भी इनकार है। हमें दर्जा अव्वल का शहरी होने का अगर हक है तो जरूरियात जिंदगी भी हमें तमाम की तमाम वो दी जाए जो पूरी दुनिया में मौजूद लोगों के बच्चों को मिलती है। चाहिए या नहीं चाहिए? तो इसके लिए आवाज बुलंद करनी पड़ती है और आज आपने आवाज बुलंद की है। आज आपने चौक और चौराहों में निकल के इनको बताया है कि हमें जदोजहद से ना कोई समाज डरा सकता है, हमें जदोजहद से ना कोई इसके ठेकेदार डरा सकते हैं। हम रियासत की वारिस है, हम सियासत की वारिस है, हम इस दिन गली कूचों की वारिस है। जब हमारी धरती को हमारी जरूरत पड़ेगी हम निकलेंगे बाहर, सरों पे कफन बांध के निकलेंगी। हम ये गली कूचे आबाद करेंगी, हम जेलें आबाद करेंगी। हम जो है वो गैरत भाइयों की बहनें हैं, हम जो है वो गैरतमंद घरों से यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आज कोई आज के इस इज्तिमात के बाद, आज के इन एहतजाजों के बाद भी अगर हुकूमत वक्त के सर पे जून नहीं रेंगती तो मैं इनको कहना चाहती हूँ कि बेशर्मो, छोड़ो मसनद और अपनी घरों को चले जाओ। देखो तुम्हारी बेटियां आज आटा मांग रही हैं, देखो तुम्हारी नलायकी की वजह से तुम्हारी बेटियां जो है वो आज बिजली मांग रही हैं। तुम्हारी नलायकी की वजह से ये बेटियां आज सेहत, रोजगार, तालीम के मौके मांग रही हैं। नहीं दे सकते तो घरों को चले जाओ। वैसे भी हुकूमत का निजाम चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम हमारे टैक्सेस के पैसों पे पलते हो, तुम हमारे दिए हुए टैक्सों के पैसों से तनख्वाहें लेते हो और पूरे का पूरा निजाम जो है वो एक आईजी और एक चीफ सेक्रेटरी चलाता है। ये सब की सब जिंदा लाशें खड़ी मंचे बैठी हुई है आजाद कश्मीर की असेंबली के अंदर। इनको जूते मार के यहाँ से निकालेंगे, निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? जिंदाबाद अहलियाने कोटली। आखिर में मैं जिन जिन घरों में हम लोग कल गए, हमारी पूरी टीम आपके पास गई, तमाम भाइयों का शुक्रिया, तमाम बेटियों का शुक्रिया और तमाम उन अहबाब का शुक्रिया जिन्होंने खवातीन की शिरकत इस प्रोग्राम में यकीनी बनाई। और मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि जब तक आपके बच्चों को बिजली फ्री नहीं मिल जाती, जब तक आपके बच्चों को सस्ता आटा नहीं मिल जाता, जब तक आपके बच्चों को तालीम और सेहत की जरूरियात नहीं मिल जाती,
جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ پورے 2 گھنٹے سے زائد وقت میں بھی یہ خواتین سراپا احتجاج ہے. یہ کیا کہہ رہی ہیں, یہ کیا مانگ رہی ہیں؟ یہ وہ اپنے حقوق کی لڑائی, جو لڑائی شروع ہوئی تھی آج سے 2.5 ماہ قبل, آج وہ ایک مکمل طور پر تحریک بن چکی ہے. صرف اور صرف میں اتنی بات کہوں گا ارباب اختیار سے کہ جس معاشرے کی خواتین 70 سال کی خاتون بھی اس دھرنے میں موجود ہے اور ایک 6 ماہ کی بچی بھی اس دھرنے میں موجود ہے. اور کسی بھی معاشرے میں جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کی پہلی یہ بات ہوتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ خواتین جہاں پہ جو آئی ہیں یہ آزاد کشمیر کے پورے سیاسی سسٹم پہ وہ زناٹے دار تھپڑ ہے جس کی گونج آج تو بٹ سے لے کے بمبر تک لوگوں کو سنائی دے رہی ہے. اور اگر یہ تھپڑ کی گونج ارباب اختیار کو بھی سنائی دے رہی ہے تو وہ فی الفور اسمبلیوں سے استعفیٰ دے کر ان عوام کے ساتھ اس جگہ پہ بیٹھے اور عوام کے حقوق کی بات کرے, اس عوام کے حقوق کی بات کرے جس عوام سے یہ ووٹ لے کر آج آپ لوگ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی لائیو وتھ شاہنواز بٹ اور لائیو وتھ فیصل منیر کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر و واصل.